Hello, I'm Sushma, and on behalf of Vikal Bengaluru, I introduce the filmmakers of Ammi, Sunil Kumar and KP Pradeep, who we know as Deepu, and Samina Mishra, who's going to be in conversation with them. This is in collaboration with BIC Screens. I'll just run through a little bit of the house rules. The questions from the audience can be posted in the Q&A box. And yes, you will see the bios of the filmmakers in the chat box, though I must say that today's guests and the sum of your bios are, I would say, don't do justice to what they have actually achieved. I'll begin with Sunil Kumar. What he brings into Ammi, into this film, is actually 10 years of deep engagement with student activism during his days in Allahabad. He combines this with his academic qualifications in economics, film studies, and philosophy. He later joined Jean Drèze, noted economist, who was one of the main architects of the National Rural Employment Guarantee Act. And Sunil says that he began as a data entry operator, after which he worked as a foot soldier, I would say, where he was part of designing and implementing the act in its early years. About Ammi, this began as an attempt to document how the right wing has kind of invaded student politics in the Indian scenario. And he wanted to look at this through the lens of gender, caste, and religion, he says. What he offers us with this film is, I would say, bears witness to a very momentous moment in India's recent history. And thank you, Sunil, for making this film. After this, KP Pradeep, who we know as Deepu. Deepu is a co-founder of Pedestrian Pictures, which was founded sometime in early 2000. They are more famous as the Batte cinema people, which means that in Kannada they used to rig up screens with the Kora cloth and project films onto them. These were documentaries made by filmmakers around the country, and they also made these video leaflets, which were actually kind of small documentaries, which they made along with the people at the grassroots level to engage them in conversation about more immediate political issues. Deepu, in the last 10 days that I have seen him, was in Chikmagalur, where he was filming along with Kavita Lankesh about a film on her sister, Gauri, after which he dashed off to make a cinematographer to make the trailer of a mainstream Telugu film, after which he was in Delhi, where I think he and Sunil were like filming something together, and then he returns to Bangalore just in time to appear at a court hearing about the Baba Budangiri issue, which we all know as the Ayodhya of South India. So he is he is the only surviving petitioners to kind of maintain the status quo with the Baba Budangiri issue. The other two being Yuva Ananthamurthy, who passed away, and Gauri Lankesh, who was murdered. Samina, so Deepu also has made a documentary on Gauri, and more recently he has made a film on H.S. Doreswamy, who's a Gandhian, which I think is available on your YouTube channel to watch. Yes. Samina Mishra, her work as a filmmaker, writer, educator. What she brings in is the experience of childhood, and there is always an attempt to break the stereotypes around identities. What she does not mention in her bio is that she is also the managing trustee of the India chapter of IWAT, which is the International Association of Women in Radio and Television. She also curates for Half Ticket, which is the children's section of the Mumbai Film Festival, organized by MAMI. And she also runs the Magic Key Center, which is a virtual resource center for children and for adults who work for and with children. Thank you very much, Samina, for doing this on behalf of Vikal Bengaluru. I will not be returning at the end of this conversation, so over to you, and thank you very much, Deepu, Sunil, and Samina. Thank you. Thank you so much, Sushma, for
this sort of very generous bios and introductions. I'm so glad to have the opportunity to do this conversation, because also I had missed seeing Ammi before. So I'm really glad that I got the opportunity to see this extremely moving film. Before we sort of jump into the conversation, I'd very much like to sort of use my privilege as the moderator to just share why I think the film is important and why I hope many people get to watch it. First of all, I just want to thank the two of you, Deepu and Sunil, for making the film, because it is important, I think, to keep stories like this alive, stories that disappear from our news feeds. And also what you have done with how you have presented it in this very coherent way, so that we really understand the narrative, the narrative that has sort of disappeared from the public space. The film is, of course, extremely moving. I mean, when I was watching it, I was crying through parts of it, but I also think it's an important document because you've sort of pieced the whole story together, connecting it to larger questions that should be of concern to us, as citizens of this country. So thank you for doing that. And I think one other important thing that the film does is to make public a representation of a category that is so often stereotyped as submissive, as oppressed, and as needing rescue, the Muslim woman. So of course, we know there is no one Muslim woman, but this understanding, it does elude the public imagination. So I think in sharing Ammi with us, you've also created the possibility for many people to understand Muslim women in a different way. And that, I think, is also an extremely important thing that you've done with this film. So yeah, another round of thank you. So I thought perhaps maybe the thing to do would be to just begin at the beginning in a way. And maybe you could talk first about how you came to documentary filmmaking and to this project, as a kind of collaborative process. And maybe it'll be nice if, both of you respond to this question. So whoever would like to go first. In 2016, 2014 के बाद से खासतौर पे मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद एक खास तरह से पूरे देश में राजनीति पूरी चल रही थी। और स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, खासतौर पे कैंपस पॉलिटिक्स की जी। तो इसकी शुरुआत हो रही थी, मतलब एफटीआई से, उसके बाद फिर जो है चेन्नई में हुआ था, फिर उसके बाद हैदराबाद, जेएनयू, पूरा सीरीज ऑफ इवेंट चले पूरे। और ये कंटिन्यूअस लगातार जो है चल रहे थे। मतलब इवन कई बार तो इसमें जो है सिर्फ 4 महीने, 2 महीने या 3 महीने का गैप होता था कई बार इवेंट्स में। तो इस ताबड़तोड़ तरीके से इवेंट चल रहे थे। और मैं जिस लैंड से बिलोंग करता हूँ, हिंदी हार्टलैंड, बेसिकली उस समय मैं इलाहाबाद और दिल्ली, इनके बीच में मैं घूम रहा था और एमपी के बीच में घूम रहा था। तो जाहिर सी बात है कि इलाहाबाद में एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, वहां पे इस तरह के इंसिडेंट्स हो चुके थे और हुए थे। और जो है जेएनयू या जो डीयू हो या फिर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का मसला हो, इन सारी जगहों पर एक खास तरीके से ये पूरा इवन उसकी तो न्यूज ही नहीं आई है, जो कि यूपी के छोटे छोटे कॉलेजेस में, जहाँ के स्टूडेंट इलेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करते थे, वहां पर भी एबीवीपी एक खास तरीके से अपने आप को पुश कर रहा था। अच्छा। और अपने आप को इलेक्ट, मतलब लगातार स्टूडेंट पॉलिटिक्स को एक खास तरीके से वहां पर लेके जा रहा था, जबकि वहां पर कभी भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स का बहुत प्रोमिनेंट इतिहास जिसे बोले थे, प्रोमिनेंट कल्चर नहीं रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने आप में रिप्रेजेंट करता है काफी सारे कॉलेजेस को, वहां का इलेक्शन का मतलब है कि भाई ठीक है। लेकिन अगर हम बोले जाए प्रतापगढ़ में अवध छोटा सा महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज है, वहां पर भी इस तरह की एक्सरसाइज चल रही है, जबकि वहां पर स्टूडेंट इलेक्शन का कोई इतिहास नहीं है लड़के, लेकिन फिर भी वहां पर इस तरह की एक्सरसाइज इसके जरिए लगातार, और ना सिर्फ इलेक्शन नहीं हो रहा है, फोर्सफुली अपने आप को चुनवाया और चुना जा रहा है, जबकि इलेक्शन के वहां कोई बॉडी जैसा ऐसा कुछ नहीं है इन कॉलेजेस में। एनीवे, तो मैं इन जगहों से बिलोंग मतलब कर रहा था लगातार, और मेरे आसपास इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। तो हमें लग रहा था कि इसको शूट किया जाना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल
स्टूडेंट एक्टिविस्ट के हिस्से से बाहर होने के बाद अभी कैमरा मेरे हाथ में था, तो मुझे लगता था कि आखिर में इन चीजों के जरिए अपनी बात कही जा सकती है, इस मुद्दे पर बात की जा सकती है। और ये कोई एक्टिविज्म का मेरे लिए हिस्सा नहीं था। मुझे लग रहा था क्योंकि इस पर मैं बहुत पहले भी बात करता रहा हूँ, लाइफ का हिस्सा था ये, तो मुझे लगता था कि ये भी हमारी लाइफ का हिस्सा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे दोस्त और मित्र इसमें शामिल हैं या इसमें इसके अपोज में, तो मैं इससे बाहर नहीं हो सकता हूँ बाय चॉइस कि मैं इससे अंदर हूँ। ये स्वाभाविक है कि मेरा उस पर बात करना, मेरा उसमें आना, और मेरी तरह बहुत सारे लोगों का इस पर बात करना कोई नई बात नहीं है। क्योंकि एक मेरा दोस्त है जो हो सकता है वीपी में हो, तो मुझे जाहिर सी बात है कि मुझे भी अपना एक स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। और उस समय मेरे हाथ में कैमरा था और मैं एक फिल्म मेकर हूं, तो जाहिर सी बात है मैं एज ए कैमरा मैं इस पूरे प्रोसेस में एंट्री करता हूँ। कैमरे को लेकर के, कैमरे के जरिए मैं इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी पॉलिटिक्स को देखने की नजर में इसमें एंट्री करता हूँ। ये एक कहा जाए तो सॉर्ट ऑफ ये कहा जाए एक्टिविज्म आप इसे कह सकती हैं, और मैं इसे कहूंगा कि हमारे जैसे तमाम लोगों का यही लाइफ है, क्योंकि हमारे मित्र एक तरफ एवीपी में खड़े हैं और मुझे भी अपना एक स्टैंड लेना है कहीं कहीं, तो मैं अपना स्टैंड ले रहा था। तो बहरहाल कैमरा था मेरे पास, तो मैंने कैमरे के साथ इस पर मैं अपना एक स्टैंड लिया और मैं मुझे लगा कि इस पे हमें जाना चाहिए। तो और ये नजीब वाले इंसिडेंट से पहले ही आपने शुरू कर दिया था? जी, उससे पहले ये इंसिडेंट शुरू हुआ था ये, और उस समय बहुत ही स्कैटर्ड वे में शुरू हो रहा था, बहुत शुरू में। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट था कि हमारे और इस पूरे प्रोसेस में इस जब ये शुरू हो रहा था तो उसमें काफी एक अकेलेपन की स्थिति थी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है कि जब आप ये फिल्म मेकिंग हमेशा एक ग्रुप का पार्ट होती है, और उस समय पैलेस्टाइन पिक्चर्स के तौर पे हमारे पास एक ऐसा ग्रुप था जिसके साथ मैं इंटरेक्शन कर सकता था, जिसके साथ मैं इस मुद्दे पर कहां पर और कैसे कैसे कहां पर लिया जा सकता है, इन मुद्दों पर मैं डिस्कशन एक कर सकता था, जो मुझे लगातार जो है मेरे काम को एक हद तक देखता है, समझता है, और फिर उसे लगता है कि नहीं, हमें लगता है कि यहाँ पर जाना चाहिए। अकेले कई बार आप बहुत स्टक हो रह जाते हैं, महीने हो सकता है आप स्टक। तो फिलहाल तो इसलिए इस रूप में पैलेस्टाइन पिक्चर के साथ एक इंट्रैक्शन के साथ 2017 में फोकस शूट शुरू किया था एक तरीके से। अच्छा, कि फोकस शूट इस रूप में हमने तय किया था, और ये कि मैं दिल्ली बेस्ड होऊंगा और वहां से मैं जो है मेरी जो जेब के हिस्से, मतलब जो मेरी जेब के अनुकूल होगा, वो इलाहाबाद हो सकता है, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो सकता है, और डीयू हो सकता है, और जेएनयू हो सकता है, इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता हूँ। तो इन 4 कैंपस को अगर मैं कवर करता हूँ तो अपने आप में यही बड़ी बात है। और यहाँ से वो फिल्म और उन इंसिडेंट्स को रेगुलर पकड़ने की शुरुआत होती है उस फिल्म के तौर पे, मतलब एक बड़ी फिल्म के तौर पे, जहां पर कि एबीवीपी का कैंपस में फोर्सफुली अपने आप को लाने का क्या मतलब है, या इस सवालों की पड़ताल कि एबीवीपी के इंडिया ऑफ आइडिया, भारत का जो विचार है, उसमें विमेंस का रोल कहां पर है, दलित का रोल कहां पर है, उसमें एज अ माइनॉरिटी के रोल पे कहां पर है, एज अ आप दूसरी तरह के विचार रखते हैं तो उसके भारत में क्या दूसरी तरह के विचार के लोगों का कोई स्पेस है कि नहीं। तो इस तरह की बात को कहने के लिए इस यूनिवर्सिटी को हमने चुना था। तो इस तरीके से फिल्म बेसिकली शुरू होती है यहाँ पर जी। और तो मतलब, और ये 17 से शुरू होकर के लगभग हमको लग रहा है कि 18 के मिड में, हमको लगता है जून जुलाई का मसला था, या शायद अगस्त का मसला था। उस समय तक, क्योंकि उस समय तक एक चीज क्लियर हो रही थी कि जो मैं सब्जेक्ट चाह रहा हूं वो एग्जैक्टली वैसा नहीं बन पा रही है। और ये मैं पहली बार देख रहा था कि एक तरीके से कहा जाए तो ये मेरी दूसरी डॉक्यूमेंट्री थी, और अगर पहली वाली एक्सीडेंटल फिल्म मेकर को छोड़ दें तो ये पहली फिल्म होगी मेरी। इस समय मैं ये सीख भी रहा था कि डॉक्यूमेंट्री में शायद कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसके आप बाहर नहीं जा सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्री काफी कुछ सिर्फ आपके ऊपर नहीं तय करती है, और सामने वाले के ऊपर भी, जो सिचुएशन है उस पर भी तय करती है कि आप इसको कितना बना पाएंगे, कहां तक ले जा पाएंगे। तो बहरहाल तो उसमें ये हुआ कि दरअसल जो विमेंस पर्सपेक्टिव है, जो दलित पर्सपेक्टिव है, जो दूसरा पर्सपेक्टिव, वो मैं इंक्लूड नहीं कर पा रहा था 1.5 साल के बाद। कुछ जगहों पर लोग मना कर रहे थे, कहीं कुछ जगहों पर अवॉइड किया जा रहा था कि नहीं, हम इंटरव्यू नहीं देंगे। इस पूरी प्रक्रिया में जो 4 कैंपस का पूरा फिल्म था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था,
और फिर इस पूरे दौर में मैं एक जगह स्टक था, और ऐसे समय में पैटरसन पिक्चर्स यानी एक ग्रुप का होना किसी के लिए भी मुझे लगता है बहुत ही शानदार, मतलब ये उपलब्धि होती है। तो इस समय हम लोग बैंगलोर में, मुझे याद है कि उस समय डिस्कस कर रहे होते हैं, उसमें लगभग 7-8 हमारे मेंबर्स थे पैटरसन पिक्चर्स के, और हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आखिर में इसको कहाँ पर लेके जाया जाए, क्योंकि ये लोग तो मना कर चुके हैं फिल्म देने से, खासतौर पर इलाहाबाद का इंसिडेंट, डीयू का इंसिडेंट। तो ये हुआ कि क्योंकि अम्मी का शूट मेरे पास लगातार था, अम्मी नजीब का जितने भी प्रोटेस्ट थे, चाहे वो विद इन कैंपस हो चाहे वो आउट ऑफ द कैंपस हो, तो कैंपस के अंदर कैंपस के बाहर नजीब से रिलेटेड जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे, जो भी डिस्कशन हो रहे थे, जो भी लोग बोल रहे थे, वो हमारे पास था। और तो ये हुआ कि तो ये तय किया गया कि अम्मी को लेकर के एक फिल्म शुरू किया जाए, नजीब के मिसिंग को लेकर एटलीस्ट फिल्म शुरू किया जाए। और उसी समय तक ये भी हो रहा था कि दरअसल रोहित विमला पर जो है दीपा धनराज बना ही रही हैं एक बड़े लेवल पे, और पटवर्धन भी जो है एक बड़े लेवल पे फिल्म खासतौर पर पूरे राइट विंग के इमर्जिंग को लेके फिल्म लेके आ रहे हैं। तो शायद इस वाले हिस्से को जितना डिटेल में कवर किया जाएगा, जितने डिटेल में ला पाए, मुझे लगता है कि एक जरूरी पहलू होगा उस समय इस पहलू का इस डिटेल में लाया जाना, कि कैसे एक सुरक्षित कैंपस, जो कि कैंपस में कभी कहा जाए तो घोषित तौर पे मारपीट नहीं हुई है, और वहां पर एक लड़के को बकायदा गायब कर दिया जाता है, और उसमें फिर जो है एसआईटी गठित होती है, फिर जो है इवन सीबीआई तक जांच होती है, और कैसे बकायदा सत्ता के संरक्षण में उसके नाक के नीचे एक बहुत ही सचेत कॉन्शियस कार्रवाई की जाती है। तो इसका एक डिटेलिंग इसकी जरूरत थी, और इस पर लग रहा था कि कंप्लीट फिल्म आनी चाहिए। तो इस रूप में फिर फिल्म का एडिट शुरू हुआ। एंड जो डिटेल है एक्चुअली दैट इज रियली द थिंग दैट मेक्स द डॉक्यूमेंट, यू नो, जो क्योंकि हम लोग के इमेजिनेशन में बस वो फ्रैगमेंट्स रह जाते हैं, इंफॉर्मेशन के फ्रैगमेंट्स रह जाते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से एक कोहेसिव वे में आपने जो प्रेजेंट किया है विद ऑल द डिटेलिंग, दैट्स रियली अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। या सो कुड वी प्ले द फर्स्ट क्लिप प्लीज? जी हो गया ना भाई? जी तो ऊपर नहीं होगा। नहीं वैसे ये बस नहीं कुछ नहीं, वो गलत है। एक दिन जब वो आएगा तो फिर मैं बिरयानी आऊँगी। जो लोग साथ रहे मेरे उन्हें यहाँ खिलाऊंगी, उनके लिए बिरयानी बना के यहीं पे, और जो दुश्मन है उन्हें दिखाऊंगी, देख हर जीत इंसाफ की होती है, हक की होती है और सच्चाई की होती है। भैया आप ये मोमबत्ती मत लगाओ यहाँ पे। कहाँ लगाएं? हमारा बच्चा हमसे छीन लिए, बकवास कर रहा है ऊपर से। लेकिन उसके काम पे चूड़ा लग रही है, जहाँ पहुँचना चाहिए खबर वहाँ नहीं पहुँच रही है, हम लोगों तक पहुँच रही है। हम लोग जानते हैं कि एक लड़का नजीब जेएनयू में आया था, लेकिन कैसे उसके कान खुले, कैसे उसकी आँख खुले, भी समझ नहीं आता। अब मैंने सोच लिया मैं अब किसी भी के साथ जाके जगह जगह ना इसके खिलाफ बोलूँगी, मंच पे खड़े होकर, तभी इसकी आँखें खुलेंगी। मुझे मारेगा मार दे, तो ऐसी मरी हुई, क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो मेरे यहाँ LKG PG से लेके 8 तक पढ़ा है। स्टूडियस बच्चा था, लड़ाकू बिल्कुल नहीं था, शरारती भी कम था और बहुत सिंसियर था। अगर ये किसी के साथ करता था कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ हूँ, तो वो रहता था। ये नहीं है कि टाइम देख के या सिचुएशन देख के वो पाला बदल ले जाए, कह दे कि हाँ नहीं हम तो आपके साथ हैं। एक अच्छा बच्चा खो जाए
तो कम्युनिटी का लॉस तो है ही है, माँ बाप का भी लॉस है, पूरे बदायूं शहर का लॉस है, हर तरह का लॉस है। कम से कम पता तो चले ना, इतना तो हम भी चाहते हैं। बुर्का पहनने वाली, घर के अंदर रहने वाली, थोड़ा कम पढ़ी हुई औरत थी, और लेकिन फिर भी उसने जितनी करेज और स्ट्रेंथ दिखाई है, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना जा सकती है, इतना कर सकती है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक बेटे की चाह ने उनके अंदर भर दिया। माँ सिर्फ माँ होती है, उसके बारे में कुछ भी कहना ज़्यादा हो जाएगा। तो सुनील, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो हमने जो शुरुआत देखी फिल्म की, सो इट इज नॉट merely just a factual introduction. No, the introduction is actually very evocative, है ना? And I was wondering if you can talk a little bit about that the character of Ammi that emerges in the film. So that centering the film around her as a central character, ये क्या शुरुआत से ही आपने ऐसे ही conceive किया था, या ये it emerged in the process? I understand that the film sort of grew kind of organically, but कब ये निकल के आया कि she could be the central sort of focus, and also that like in your process ये जो एक balance है between footage that presents the information and also images that are created more formalistically, uska balance, what were you thinking about that in your process? पूरे जब भी इस पूरे, क्योंकि इस मूवमेंट में लगातार 1.5 साल तक पार्टिसिपेट कर रहा था, जब तक 1.5 साल तक ये एक हिस्सा नहीं था कि मैं जो है मैं कभी ये महसूस, या कोई भी ये महसूस कभी नहीं करता था कि अम्मी इस पूरे किसी भी मूवमेंट का किसी उसका सेंटर पार्ट नहीं है, बल्कि नजीब है। क्योंकि अम्मी ही सभी के साथ, चाहे वो किसी भी आंदोलन में जाना हो, किसी भी उसमें जाना, और वो सारे ही आंदोलन वासियों की एक अम्मी के रूप में आ चुकी थी। हर कोई अम्मी बोलता था, इवन उनकी उम्र के बराबर वाले भी झटके में अम्मी बोल जाते थे। तो ये जो पूरा ये जो था, एक तो ये कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली इंसिडेंट था, घटना था कि नजीब गायब कर दिया गया है, लेकिन दरअसल जब आप विजुअली देखते हैं तो अम्मी है लगातार आपके विजुअल में। तो अब ये है कि नजीब की गायब होने की घटना को, मतलब फोर्सफुली कहा जाए, फोर्सफुल डिसअपियरेंस, गायब कर दिए जाने की घटना को हम नजीब की फैक्चुअल घटना को भी दिखा सकते हैं। दूसरा ये है कि अम्मी की नजर से भी चीजों को देखा जा सकता है, और अम्मी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता था, और रियलिटी में भी कोई मूवमेंट वाला इग्नोर नहीं कर सकता था। तो जाहिर सी बात है कि मैं कैसे इग्नोर कर सकता था। और ये और कॉन्क्रीट तब हुआ जब हम लोग अगस्त के आसपास हम मीटिंग कर रहे थे। उस समय पहले से ही एक तय था कि हमारे एक दोस्त के साथ डिस्कशन हो रहा था, तो ये हो रहा था कि उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं अम्मी को लेके तुम काटते हो, अम्मी के हिस्से को वो करते हो। तो जब हम अगस्त में मीटिंग कर रहे थे लगभग, और उसी समय ही जो है ये सजेशन, ग्रुप का स्ट्रॉन्ग सजेशन था कि नहीं, अम्मी की नजर से ही इस फिल्म को, इस पूरे डिसअपियरेंस, फोर्सफुल डिसअपियरेंस को देखा जाना चाहिए। वो काफी इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट की कई सारी वजह उन्होंने मतलब जो है डिस्कस होकर आ रही थी। उसमें इम्पॉर्टेंट एक तो ये है कि पासमानदा कम्युनिटी से पहली बार इतने बड़े लेवल पे नॉर्थ में, अगर मैं जितनी सीमित जानकारी है, नॉर्थ में ऐसे देखा जाए तो इतने अनपढ़ महिला जिसको कि कभी भी इसके पहले कभी भी घर से बहुत बाहर कभी नहीं, खासतौर पे इस मास गैदरिंग में तो कभी नहीं गई हुई। इसीलिए जब वो नजीब का मूवमेंट शुरू हो रहा था तो जेएनयू में उसी दिन से प्रोटेस्ट शुरू माउंट हुआ था पैरेलली, और अम्मी और वो जो है उनके सिस्टर सदफ, वो दोनों लोग बाहर अलग से, वो शुरू में बोलते भी रहे थे कि हम मूवमेंट का पार्ट नहीं है, हमको नहीं, हमको हमारा बस बच्चा चाहिए। लेकिन तीसरे दिन वो सडनली, आपने वो फिटुस भी देखा होगा जिसको आपने मार्क भी किया है, वो अंदर आती हैं। तो इस तरीके से जो है
धीरे धीरे इस तरह के इस महिला का एक आना ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, और इसे कोई भी, मतलब मैं तो क्या, कोई भी नहीं मिस कर रहा था, तो ऑफ कोर्स मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। तो इसलिए इस इम्पोर्टेंट एक नैरेटिव के रूप में डिस्कशन में निकल गया कि नहीं, इसी नजर से कहा जाना चाहिए कहानी को। तो या And so also this question that I asked, the more formalistic kind of, एक तो हो गया, so वो खुद निकल के आ रही थी as a character, so that you're documenting the events जो भी हो रहा है, protest हो रहा है campus पे, campus के बाहर, तो आप हैं और वो एक emerge करके आ रही हैं क्योंकि उनका presence बन रहा है। But this idea, जैसे जो जिस तरह के आपने sequence shoot किया of her on the terrace reflecting and all that, वो तो शायद बाद में किया होगा, ये बात का 1.5 साल के बाद का जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि वो क्या था? हाँ, उसी मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि जो है रिव्यू किया हम लोगों ने कि आखिर में इसको लेकर के कितना हमारे पास मटेरियल कलेक्ट है। तो उसके बाद ये हुआ कि तय हुआ कि नहीं, अम्मी को लेकर हमें फिल्म को एडिट करना चाहिए अम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो पैच शूट है उसको हमें उसके बाद शुरू करना चाहिए। तो रिव्यू के बाद वो पैच शूट एक निकला उसमें, जिसमें हम लोगों ने 10-15 दिन का एक अलग से जो है शूट वो किया, तो जिसमें अम्मी के घर बदायूं में जो है वहां पर, और फिर कुछ दिल्ली में कुछ इंसिडेंट, दैट्स इट, वो इतना ही था कुछ। Okay. So I had wanted actually also to go into जो आपने जिस section की बात करी है, so I wanted to share that piece of that clip where we see all this sort of like the different kinds of ways in which you have brought in जो detailing की आप जो बात कर रहे हैं. So sometimes you have shot it yourself, sometimes you're using mobile phone footage, etc. So I wanted to talk about that, and I wanted to show that clip before we go into that. तो ये जो पूरा मेंटल ट्रॉमा हम लोगों पे गुजर रहा था, मुझ पर, मेरी बहनों पर और मामी पर और भाई, तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो वहाँ पे मैं किसी को नहीं जानती। मुझे ये भी नहीं पता था मोहित पांडे कौन है, और मोहित जब उसको घेर के लड़के उससे क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये उसका प्रेसिडेंट है जीनियस स्टूडेंट यूनियन का। तो मैं भी उसको थोड़ा सा डांटने लगी, तुम्हारा क्या रोल है, तुमने क्यों नहीं उसे बचाया? वो तो कहने लगा कि मैंने बचाया, मेरे सब चोटें आई हैं, उसने दिखाया मुझे। उन्हीं में एक लड़का आया और आके मुझसे बात करने लगा कि अच्छा आप उसकी बहन है, ये है वो है, हमने सुना है कुछ उसको प्रॉब्लम थी, ऐसा था वैसा था। तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और आप कौन है? नहीं नहीं मैं भी यहीं का हूँ। उस लड़की के बारे में मुझे 2-3 दिन बाद में पता चला। वो वीसी ऑफिस के बाहर अपने ग्रुप के साथ था, और वो एबीवीपी वाला लड़का था। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद से बात नहीं की, वीसी मिलने को तैयार नहीं। मैंने उसी टाइम डिसीजन लिया कि मुझे वीसी से मिलना है। मैंने मामी से कहा मामी यहाँ रुककर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, वीसी से अभी के अभी हम लोग मिलेंगे। तो हम जब अंदर गए तो उन्होंने कहा वीसी नहीं है। जब बहुत चिल्लाए, बहुत गुस्सा किया, मामी ने भी, मैंने भी। मैंने कहा मैं सब शीशे तोड़वा दूंगी अगर आपने अब कहना नहीं माना। बहुत इज्जत के साथ हम बात कर रहे हैं आपसे, हमें वीसी से मिलवा दी। तो ये गार्ड जो है वो गया ऊपर। तो जैसे ही वो गया, भाई मेरा पीछे पीछे गया, तो पता चला वो वीसी ऊपर ही बैठा हुआ है। वहाँ पे ये एबीवीपी का जो इनका लास्ट पहला लीडर था, सौरभ शुक्ला या शर्मा, सौरभ शर्मा, और उसके साथ एक वो लड़का जो मुझे उस रात में पहली बार मिलने आया और मुझे बहुत मीठी बातें कर रहा था, वो, और कुछ इनकी और साथी वीसी से मिलने के लिए वेट कर रहे थे। वीसी के पास हम लोगों से मिलने का टाइम नहीं था, उन लोगों से वो मिलने जा रहे थे। वो उनमें से जो लड़का मुझे सिंपैथी ग्राउंड पे मिला था, वो लड़का कहता है आइए मैं आपसे मिलवाता हूँ वीसी को। उनकी इतनी मतलब अप्रोच थी कि वो अंदर जाते हैं और अंदर जाके वीसी से कुछ बात करते हैं, और वो वीसी हमसे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जो जिन्होंने मारा, जो उसी ग्रुप के थे। मैं ये नहीं कह रही सौरभ शुक्ला ने मारा, लेकिन है वही ग्रुप, उससे मिलने के लिए वीसी के पास टाइम है। विक्टिम जो माँ है वो बाहर बैठ रही है, 4था 5वां दिन है, उससे मिलने के लिए उसके पास टाइम नहीं, और ना कर्टसी उसकी।
हम लोग जब अंदर जाते हैं तो ये लोग भी आगे, हमारे कॉन्फ्रेंस रूम था, हमारे सामने की सीट्स पे बैठ जाते हैं। तो हम लोग मना करते हैं, आप क्यों, तो हमारे सामने बात करिए। मैंने कहा हम आपके सामने क्यों बात करें, आपसे हमारा क्या लेना देना है। तो हमने आपको मिलवाया है वीसी से, हम आपको मिलवा रहे हैं। एकदम उनका टोन चेंज हो जाता है, सो व्हाट, आप मिलवा रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने क्यों बात करूं, दिस इज़ माई पर्सनल मैटर, आप कौन होते हैं मैं आपको नहीं जानती। तो थोड़ा हम लोग गुस्सा करते हैं तो वो लोग उठ के चले आते हैं। तो जब मैं, मेरा भाई, मुजीब और मामी, हम 4 लोग थे, वीसी, रेक्टर, प्रॉक्टर, एक और कोई साहब थे और उनका गार्ड वहाँ पे मुस्तकिल रहे कि उनको ये लग रहा था कि भाई हम अटैक कर देंगे। तो वहाँ पे जो है उनसे जो बात सवाल करें, जो बात करें, मैंने तो रिकॉर्डिंग करके रखी भी है उस पूरी मीटिंग की। हम सब वही साइड चाहते हैं, पहले नजीब किधर है वो हमारा सामने आना चाहिए। लेकिन सर नजीब के साथ उन लोगों को, उसका एक सर पॉसिबल आखिरी भी है कि जिन लड़कों को भी मारा है ना, उनको उनके साथ एक बार एफआईआर हो जाए, अगर गिल्टी नहीं होंगे तो छूट जाएंगे, गिल्टी होंगे तो सामने आ जाएंगे। क्रॉस क्वेश्चनिंग उनसे होनी चाहिए। पहले सी व्हाटएवर यू आर डूइंग नाउ, कीप क्लोज टच विद द पुलिस, फाइंड आउट द प्रोग्रेस, राइट, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। So see, ultimately we have searched within the campus with our security guards and wardens, जो कितना कर सके वो कर दिया इन्होंने, लेकिन now we are dependent on the police. So हम क्लोज कांटेक्ट रहेंगे पुलिस से। नहीं सर, सब कुछ और पूछा सर हम जो पूछ रहे हैं आप उसको घुमाइए नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिन्होंने मारा है कल तक आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, हमें दिखना चाहिए कि क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जिन्होंने मारा है। ठीक है कि एफआईआर आपने कर दी, जो मुद्दा है वो बच्चे को मिलने का है, हमारे एफआईआर करने से बच्चा मिल जाएगा। आपके एफआईआर करने से बिल्कुल मिलेगा सर हमें डर है, जो धमकी मिली है उसको जान से मारने की, तो हमें डर है कि वो हमें अब नहीं मिलने वाला। ये हमें खौफ है अंदर से कि जब 150 लड़के मिलकर सबके सामने, सिक्योरिटी गार्ड और वार्डन के सामने उसको मार सकते हैं, जान से ही मारने की कोशिश है और उसको मारने की धमकी दे सकते हैं, तो हमें इस चीज़ की उम्मीद बहुत कम है कि वो अब हमें मिलेगा। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा जंगल आपका यहाँ चारों तरफ है, कोई किसी को डाल दे मार के तो बदबू भी ना फैलेगी। हम लोग भी चाहते हैं कि जेएनयू का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम ना चले, क्योंकि जिस तरह से इनसेंसिटिव है, आपसे पहले भी कई मर्तबा बात हो चुकी है कि हम इस इनसेंसिटिव को एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सुनील, I don't know if we'll get Deepu back, but हम जारी रखते हैं। तो like I said कि I wanted you to just talk a little bit about ये जो आपने डिटेल्स पीस टुगेदर करके पूरा नैरेटिव एक कंस्ट्रक्ट किया है ना, तो उसमें यू हैव यूज्ड मल्टीपल काइंड्स ऑफ फुटेज, नो, आई मीन यू यूज्ड द सदफ मोबाइल फुटेज, थिंग्स दैट यू हैव शॉट, आर्काइवल, व्हाटएवर। तो इसमें ये करने के लिए, एंड देयर इज अ काइंड ऑफ, यू आइडेंटिफाई कहाँ व्हाट द सोर्सेज आर, बट देयर इज अ काइंड ऑफ सीमलेस क्वालिटी, सो वी आर रियली फॉलोइंग द नैरेटिव कि फिर ये हुआ ना। So can you talk a little bit about that? वो करने में challenges तो रहे होंगे ना, तो बिल्कुल। चैलेंजेस की बात की जाए तो ये सही बात है कि मुझे लगता है किसी भी तरीके का काम करने में चैलेंजेस थोड़े बहुत तो होते ही हैं, और खास तौर पे जब एक सत्ता के खिलाफ, मतलब सत्ता कुछ कहने की कोशिश कर रही है और आप उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाहिर सी बात है कि चैलेंजेस सभी के लिए काफी मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन अगर लोग आपके साथ हों तो वो चैलेंजेस नहीं बल्कि काफी क्या बोझाए एडवेंचर टाइप का हो जाता है। ये एक फर्क था, ये एक एडवेंचर रूप में आ रहा था, क्योंकि लगभग जेएनयू के, एटलीस्ट जेएनयू के अंदर कि सारे ही स्टूडेंट लगभग हमारे साथ में थे, और बिना उनकी मदद से संभव नहीं था, क्योंकि कैमरा जेएनयू के अंदर शूट कर पाना असंभव है, खासतौर पर ट्राइपॉड लगा के। आप हिडन तरीके से कुछ कैमरे हमने शॉट लिए हैं जो हैंडल लिए हुए हैं दाएं बाएं, और उस समय हमारे पास एक मोबाइल था, उससे कई सारे शूट किए हैं हॉस्टल के अंदर और जो है इस तरीके के, तो वो विदाउट स्टूडेंट संभव नहीं था। और ये चैलेंजेस कम, कई बार ये एडवेंचर बन के आता है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आता है ये। तो और इसमें जाहिर सी बात है कि अगर आप और इसमें जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, क्योंकि मैं जेएनयू के बगल में ही रहता था,
और मेरे कई सारे मित्र जेएनयू का हिस्सा थे, तो जाहिर सी बात है जेएनयू की पॉलिटिक्स भी और रोज ही मेरा जाना आना होता था, तो इस घटना के एक एक डिटेल से मैं बहुत वाकिफ था। बल्कि एक समय तो ये दुविधा खड़ी हुई थी लगातार कि जो है हमारे और उस पेडिसन पिक्चर्स ग्रुप के बाकी साथियों के बीच में कि जो है कि आप ये फिल्म जेएनयू के अंदर के लिए बनाना चाहते हैं या बाहर के लिए बनाना चाहते हैं, क्योंकि जेएनयू के अंदर की पॉलिटिक्स काफी अलग है, खासतौर पे बाहर की राजनीति की तुलना में। अंदर काफी फ्रीडम है बहुत सारी बातों को बोलने की, बहुत सारी बातों को कहने की, बहुत सारी अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने की। बाहर उतनी आजादी उस समय तक तो बिल्कुल भी नहीं रह गई थी। तो एक एक छोटे छोटे जो भी इवेंट्स होते थे उसकी हमें सूचना मिलते थे और मैं वहां पर होता था, और मैं वहां पर नहीं हूं तो भी जेएनयू के एक साथी हैं हमारे जो है शमीम असगर अली, जो लगभग कह लिया जाए तो वो जेएनयू के एक तरीके से परमानेंट कैमरा पर्सन और वो वीडियोग्राफर है जो कि सारे इवेंट को शूट करते हैं। अगर कुछ कमी हो तो वो उनसे पूरी हो जाती है। तो इस तरह के लोगों, अगर आपके पास लोग हों तो वो चैलेंजेस नहीं बल्कि एडवेंचर बनता है, मजेदार एडवेंचर के रूप में हो जाता है वो। तो सचमुच एक बड़ा ही कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट रहा है। तो बिल्कुल, और मुझे लगता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री शायद हमेशा कोई बोले कि अकेले के, मुझे लगता है संभव नहीं है अकेले के दम पे। आप मतलब आप अगर कैमरा पर्सन भी आपके लिए सिर्फ कैमरा कर रहा है, आपके कहे के अनुसार ही कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो कैमरा नहीं करता तो जाहिर सी बात है कि हम वो हिस्सा हमारे फिल्म का, मतलब हम उसे फिल्म का हिस्सा नहीं बना पाते। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है जो भी शूट मिले, तो सदफ ने बोला कि जो है कि उनके पास उस समय का रिकॉर्डिंग है जब वो बातचीत हुई, तो ऑफ कोर्स ये एक इंटरेस्टिंग फुटेज और फैक्ट्स होता है जो कि उस सिलसिलेवार तरीके से उसको रखने में काफी सही रहता है। और हॉस्टल के अंदर का शूट है जो हॉस्टल के लड़कों ने मदद की शूट करने के लिए, और जबकि मोबाइल के कैमरे से शूट करना कहीं कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब आप एक निश्चित फ्रेम से और एक खास ऑब्जेक्ट को आप कई एंगल से शूट करते हैं तो लोग डाउट में हो जाते हैं। और खासतौर पे वो हॉस्टल, जिस हॉस्टल की ये घटना है, माही मांडवी की घटना है ये, उसके अंदर काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन वहाँ के जो दोस्त थे, वहाँ के प्रेसिडेंट हो या फिर जो है जो वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, अंतरवासी छात्र थे, उन सारे लोगों ने काफी अच्छे से मदद की, मगर उन्हें ये क्लियर किया कि अभी यहाँ कोई नहीं है और हाँ हम बाहर खड़े हुए हैं और आप इसे शूट कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जब वो ईद मनाते हैं उस समय जब भी होता है और इफ्तारी वगैरह करते हैं, उस समय भी उन्होंने बाकायदा जो है अपने प्रोटेक्शन में लेकर के तरीके से शूट को बाकायदा ऑर्गेनाइज किया, करवाया। कई बार उन्होंने खुद कैमरा भी किया हुआ। तो ये एक एडवेंचर रहा है ज्यादा, मुझे बोले, और ये एडवेंचर किसी के साथ भी काफी मजेदार होता है, ये शानदार था। तो ये कोई मुश्किल तो इस रूप में नहीं होता है, मुझे लगता है। जी नो, सो ये जो आपने इफ्तारी वाली बात की, एक्चुअली मैं उसका आई वांटेड टू कम टू दैट कि तो एक तो ये हिस्सा हो गया फिल्म का कि where you have pieced it together, ना, the whole story. Yeah. But the film also then moves to the larger questions. And this, in fact, the iftari scene and all is actually part of that section. ना, जहाँ पे हमें दिखता है that you have a series of interviews which are about, you know, the discrimination on campus that Muslim and Dalit students face. So, you know, I wanted to actually ask, and I'm sad that Deepu is not here, because I also wanted to ask about, you know, the pedestrian pictures, the kind of like how it was conceived, and this idea of documentary film as a sort of tool for something else, you know, something larger perhaps, something different than creating the film. That you're creating the film, but your purpose is something more than creating the film. Am I right? आप कह सकती हैं, हाँ। तो I was wondering if you can talk about that, you know, why that, like, why do you think that is important? And also, अब जो माहौल है, जैसे आप फिल्म को भी जब आप शुरू करते हैं, the text placard is indicating that कि माहौल बदल रहा है। तो ये जो हम पोस्ट ट्रूथ एक कॉन्टेक्स्ट हमारा चल रहा है, तो उसमें फिर इस तरह की डॉक्यूमेंट्री का क्या रोल है, क्या ये जरूरी है, क्यों जरूरी है? मैं ठीक से सवाल आपका समझ नहीं पाया पूरा ही कि ये व्हाट इज द रोल ऑफ द डॉक्यूमेंट्री फिल्म एज अ टूल फॉर एक्टिविज्म? Okay, yeah.
मैं थोड़ा सा इसको अलग करूंगा कि एक्टिविज्म ये वो नहीं, मेरे लिए ये एक्टिविज्म नहीं है। मैं बताया ना कि मैं जिस जगह से आता हूँ वहां पर आपको इस तरफ बात रखनी है या तो इस तरफ बात रखनी है, बीच का कोई बहुत स्पेस आपके पास बहुत नहीं होता। आपके दोस्त मित्र हैं जो सीधे सीधे दुर्गा पूजा की यात्रा निकालने वाले हैं, या वो गंगा जल चढ़ाने जाने के लिए शंकर वाली वो यात्रा में उसका शामिल होने वाले हैं, आपके ही मित्र हैं, और डे टू डे लाइफ में आप उनके साथ इंटरेक्शन आपका हो रहा होता है। हम जिस परचून से दुकान से गेहूं या आटा खरीदने जा रहे होते हैं, तो वो ऐसे ही बातचीत कर रहा होता है कि ये जितने भी मुस्लिम हैं इनको अब मोदी आ गया है तो अब उनको बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। तो ये ऐसे चीजें हैं जिससे लग रहा था कि जिससे मैं कभी भी इसके पहले वाबस्ता नहीं था। ये अचानक एक पर्टिकुलर रिजीम के आने के बाद इस तरह की भाषा जो है बदलने लगी थी। और इसको रैशनली अगर देखें तो मुझे लगता है कि ये बहुत मतलब ये किसी भी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, ये नहीं रहा है ना। हमने मतलब इतना रिलीजियस घर से आता हूँ, उसके बावजूद भी कभी भी वहां इस तरीके की हमको मतलब इस तरीके से मुझे एजुकेट नहीं किया गया था। तो जाहिर सी बात है, तो ये दो तरीके से कहा जाए। एक तो ये है कि इसे एक तरीके से देखा जा सकता है कि ये सोसाइटी को बदलने का एक टूल एक्टिविज्म है, लेकिन मैं इसके रूप में इसको इस रूप में नहीं मानता। मुझे लगता है कि ये मेरे सोसाइटी में रहने की जरूरत के कारण है कि मैं एक खास तरीके से मैं जिस तरीके से मैं रहता था मैं उस तरीके से रहना चाहता हूँ। वहां पर इस तरीके के मैं मतलब कि एंटी मुस्लिम, एंटी दलित या इस तरीके का कोई जो है क्या बोलते हैं कि प्रोमिनेंट एक्शन, मतलब बोले बहुत ही स्पष्ट एक्शन मैंने अभी तक नहीं देखा था, और न ही मैं उसमें रहना चाहता हूँ, न ही उस लॉजिक में बिलीव करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं जहाँ रहता हूँ मुझे रहने के लिए जरूरी है कि इस तरीके की बात करूँ मैं। अगर मेरे पास कैमरा था इसलिए मैंने ये बात की, तो मैंने कोई एक्टिविज्म नहीं किया। मैंने अपनी लाइफ को बहुत सामान्य तरीके से जीने की कोशिश की है। एक आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है। जी बिल्कुल। तो ये कोई मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा था कि मैं जाके लोगों को बताऊंगा कि नहीं सच्चाई ये है। एक्चुअली मैं जो देख रहा था मैं उसको बयां कर रहा था। तो बल्कि गोरख की एक अच्छी सी कविता है उसपे कि 1000 साल पुराना है उनका गुस्सा, 1000 साल पुरानी है उनकी नफरत, मैं तो उनके बिखरे हुए शब्दों को लय और तुक के साथ उन्हें वापस लौटा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें डर है कि आग भड़का रहा हूँ। तो कोई इसे आग भड़काना कहे, स्टेट कहे, कोई इसे एक्टिविज्म कहे, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो आप पूरी चीजों को आप देखिए तो आप बोल भी रहे हैं कि दरअसल मैंने वो जो सीरीज ऑफ फैक्ट्स थे जो कि 2 साल में घटित हुए थे, मैंने उनको कंपाइल करके, हम लोगों ने उसे कंपाइल करके एक डेढ़ घंटे में आपके सामने रख दिया। वो कोई उसमें मतलब मुझे बहुत एक्टिविज्म का वो नजर नहीं आता है। मुझे कई बार लगता है एक्टिविज्म वो होता है कि मुझे लगता है कई बार जहां पर कि आदमी वाकई अपनी लाइफ को छोड़ करके और सोसाइटी को बदलने की राजनीति का हिस्सा है। तो मैं कोई सोसाइटी बदलने की राजनीति का हिस्सा नहीं कर रहा था। मैं बस सोसाइटी में जो हो रहा था मैं वो दिख रहा था कि देखो तुम्हारे सामने हो क्या रहा है, ये क्या है ये, और इसका पार्ट मैं तो कम से कम नहीं हूँ एटलीस्ट। थैंक यू, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज इस तरह की डॉक्यूमेंट्री नहीं तो उसका इट फॉल्स इनटू दैट बॉक्स, उसको एक जैसे कैटेगरी में डाल दिया जाता है एज एन एक्टिविस्ट थिंग, बट एक्चुअली टू सॉर्ट ऑफ सी इट एज just a form of self-expression in the same way as so many other forms of art, that is interesting to listen to. Ab I don't think Deepu join kar payenge, so I wanted to show one more clip. We'll skip clip 3 because we've sort of run out of time, but I wanted to talk about, you know, how the film ends and actually what there is in the film that we can take away. So jo clip 4 hai, if we can just play that. आगे बढ़ेंगे। जेएनयू तालिब इल्म नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिपोर्ट को कबूल कर लिया है। आपको बता दें कि जेएनयू तालिब इल्म 2 साल से लापता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नजीब अहमद को देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई नहीं ढूंढ पाई। धार्मिक घृणा से जुड़े इस हाई प्रोफाइल मामले को सुलझाना तो दूर, सीबीआई इस मामले में किसी सुराग तक नहीं पहुंच सकी। अब उसे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की इजाज़त दे दी है। उन्हें जो करना था वो किया, क्योंकि उनके ऊपर पूरी तरह से हुकूमत का दबाव है कि नजीब को ना ढूंढा जाए, बल्कि उन लड़कों को बचाया जाए जो लोग अपराधी हैं। 9 लड़के, वो एबीवीपी के 9 गुंडे, उन्हें बचाने के लिए तमाम टीमों ने काम किया है। हमसे उन्होंने कहा आप जो चाहती हैं हमें लिख के दें। मैंने 10 पेज का उन्हें लिख के दिया जो पहले दिन से अब तक हुआ था, लेकिन उन्होंने उस पर ना एक भी कार्रवाई नहीं की, एक बार भी नहीं की।
और ना ही उन लड़कों से रिमांड ली उन लड़कों की, ना ही कोई उनसे पूछताछ की गई, बल्कि जेएनयू में सब कुछ मौजूद है। जेएनयू के अंदर आई विटनेस मौजूद है, वार्डन गवाह मौजूद है जिसने लिखित में पूरा बयान दिया है। आज तक सीबीआई ने कोई भी बयान कोर्ट में लाकर नहीं दिखाया जो कि सच्चाई सामने आए। पूरी तरह से कोर्ट को गुमराह किया गया। मेरा और कोर्ट का टाइम बर्बाद किया है सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि सीबीआई कुछ कर ही नहीं रही थी। हम बैठेंगे तो नहीं है क्लोजर रिपोर्ट लगाइए, तो लड़ाई तो हमारी जंग जारी रहेगी जब तक हमें नजीब वापस नहीं मिलता, हमें इंसाफ नहीं मिलता। मैं तो लड़ती रहूँगी। एक आम बच्चा जो गली मोहल्ले या सड़क से या बाज़ार से गायब हो जाता है, कि उसकी आवाज़ कहीं उठेगी? कौन उठाएगा उसकी आवाज़? नहीं उठती। यानी कितनी माँ बेबस लाचार होकर बैठ जाती हैं अपने घरों में। और जब मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा कोई, मेरे साथ हज़ारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तमाम लोग, बड़े बड़े इंसाफ पसंद लोग जो कि तमाम लोकतंत्र को मानने वाले, उसको जानने वाले, वो लोग मेरे साथ खड़े हैं। और पूरा यूथ, तमाम हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी से तमाम बच्चे मेरे साथ खड़े हैं। तो जब उनकी कोई गिनती नहीं है तो उस माँ की क्या गिनती होगी जिसे कोई जानता ही नहीं, जिसके बेटे को कोई जानता नहीं है। तो उन माँओं से कहना चाहूँगी कि वो माएँ खड़ी हों, उठें और अपने बच्चों के लिए लड़ें। खड़ी तो हों एक बार। उनके साथ एक माँ खड़ी है जिसका नाम फातिमा नफीस है, राधिका वेमुला है और जुनैद की माँ है। मेरे साथ यहाँ 3 माँ थी। अभी आप मेरे बच्चे हैं, आपने मुझे माँ मान लिया है तो मैं जानती हूँ अपने भाई को ढूंढ कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और रही बात सीबीआई की, तो सीबीआई ने तो सही बात तो यही है, केस खोला ही नहीं था, बंद क्या करेगी वो। उसने जो किया है वो इस हुकूमत के इशारों पर किया है। अब आप लोग और सोचें कि अब सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट लगाएगी तो हमें किस तरफ जाना है, क्या करना है। मैं सब कुछ आपके सामने रख कर ही, आपको बताकर ही करूँगी, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो। मैं आप में, आप सब में अपने नजीब देखती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अब आइंदा किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा ना हो जो इनकी हिम्मतें बढ़ें। इन्हें जवाब देना है और ये देना पड़ेगा, और हम इनसे जवाब लेकर ही रहेंगे। हुकूमत के तमाम कारिंदे हैं जिन्हें मैंने चैलेंज किया था कि सबके साथ सबके विकास की बात करते हो तो आओ मेरे साथ खड़े हो जाओ, दिखाओ सबका साथ। होश में आओ, 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 होश में आओ। हमारा नजीब को ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ। सीबीआई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। Welcome back, Deepu. I hope we will be able to hear you. So what I wanted to say, ma'am, this last sort of clip that I wanted to play is because इसमें दिखता है ना that actually everything that I feel that you set out to do with the film sort of comes together here. एक नजीब की कहानी, लेकिन its connection with the larger story. And also the need to build a larger solidarity, so we see all of that coming in this sequence. And I wondered, that what has been actually like the response of people. I mean, that's what I take away when the film ends. That is, what I'm taking away. And also the character of Ammi, because of how she is used and her voiceover in this sequence, I take that away, right? So I was wondering, what has been the response to the film wherever you have screened it? And yeah. It was overwhelming for us in terms of, and several places we took Ammi also.
You know, whatever it takes. Because as a documentary filmmaker, you know that, you know, we are not given so much money, but we were very sure that we are taking Ami into different spaces along with the film. And the second thing is, like, for example, even in the edit also, I edited the film. So me and Sunil's conversations was primarily in terms of how can we, like, for example, you think, like, the way it leads up to this particular sequence is about Ami is in the kitchen, Ami is actually in his room. Okay, so we want to actually represent a mother more than anything else. Okay, actually, let's say in the current political context, a Muslim mother, okay, who used to wait for his child to come home at, because as a Muslim community, as far as Sajjar committee report is concerned also, education is only one way that they are going to, get out of what they are in right now. How post-Indian independent state constructed, like, Dalits, Muslims, the way, actually it's not the question of the community alone, it's a question of the state, like. But in terms of, there is a mother with a dream, her children, all of them are well educated, and she spent the time on that, like any mother, like my mother or any mother in that manner. So, and it's like Rohit Vemula's mother. Yes. Okay. It's like, for example, Umar, who's sitting in the jail right now, Yes. who's a very In fact, good it's very moving to see, young Umar in the film. For me, like for us, for me and Sunil, it was like, there was no difference between others also. There is no difference between what is happening in our country right now also. Like we could tell, the story. So that way, like we think that we very carefully constructed. Yeah. And that up to that, because as a filmmaker, you actually take people through journey of their emotions, of their relationship with our characters, to everything else. So that way, I feel like the people could relate to it, and people. So you could think it was received the way that you wanted? Yeah, it was received, and we have been screening across the country for the last, and in between, Corona came as an obstacle, but still we were having online screening across. Okay. But I think, like, people could relate to Ami, and that was the most important thing, more than the film for us. Yeah. Okay, because we call her Ami. She's actually worried about me and Sunil. So it is about that. It's about, like, because Pedestrian just keeps a baseline telling that if our characters doesn't like our film, not the right-wing characters or anybody else like that, but our main characters, they don't like our film, then that film doesn't have to be seen by the people. So it's just that that emotional connect happen with people when they watch the film across, when we screened across the country. And that is what Can you talk a little bit about Pedestrian Pictures and how you use film? Because as Sunil said, for him, the film is, he doesn't see it as a tool for activism, but it is self-expression for him. So I was just curious, you want to talk about, like, for Pedestrian Pictures, how do you see it? And also just the larger question of, like, what is your sort of kind of like, what is the model that you all follow in terms of distribution, etc.? Look, I always say, Pedestrian Pictures, I am the only person who's actually co-founded, or whatever the people say. And look, people call us activist filmmakers, but we are filmmakers and activists. An IT engineer can be an activist, a filmmaker can be an activist. And there is no objective, filmmaking which exists. Every story is subjective. Okay. So we belong. Okay. We belong to the counter hegemony of this country. Okay. Whether it was Congress, whether it's BJP, we actually
belonged and all our films, because we started 21 years back. Okay. So all the films were against the state and the narrative which is getting constructed, which is not being actually the narratives which is not coming into the mainstream. Okay. For example, Ami is Ami for us. Ami's narrative won't be carried by CNN, IBN or anybody else like that. Or like even NDTV in that manner. Okay. Ami is actually a victim for them. For Ami is our strength for us. Okay. Ami is what makes us live and make a narrative like that. Okay. So, here the question is that I actually reject, and I always say that, the biggest propaganda industry is Bollywood. Okay. How a woman should look, or like how a family should be, to everything is defined by that mainstream industry. And you won't say state as a propagandist machinery. Okay. You like Modi and you listen to Modi. Okay. And Modi can do 100 videos, but it's not propagandist in nature. But if you create a counter hegemonic discourse in your film, then you become propagandist. What is this? Okay. So this is a basic question in which Persian Pictures work. We are actually creating the stories which is a part of the counter hegemonic discourse, which is happening in this country. And maybe we get threatened several times, we get investigated, fine. It doesn't matter, but we'll have to tell these stories. We can't get scared. And how do you manage to, because it is hard to be able to make those stories, people are not going to. We are a cooperative society. Under Cooperative Society Act, we have registered. And, we don't have money. Okay. But we have talent. In South Indian film industry, at least 14 technicians who's working right now. What you watch in, Amazon Prime to all this kind of things from South Indian films which has come. Majority is our technicians, our camera persons, our sound engineers. Okay, so we are a team, we are actually a very good collective. We don't take money, we don't earn anything out of it. And, all of us. And for distribution, how do you you go around, I'm sure Corona has changed that, as you said, but what was it like earlier and how are you adapting to the new? 15 colleges regularly screen films. Okay. Not only our film, we think that there is a lot of work by other filmmakers also. Okay, so we screen their films, and one basic thing is that you don't make film not to screen, not for festivals. Okay, you screen film to take it to people. Right. For example, one of the problems what documentary filmmaking face is that they say that people don't like it. Have you screened to the people to say such kind of a dialogue? Yeah, actually, documentary filmmakers know that audiences exist for documentary films. It is other people who just assume. So it's just taking it to the people, whether it's like Bate Cinema, Torsuero, that entire dialogue of like putting a cloth and showing it to people. People come and say, okay, and watch your film, and you say, always you actually, as an industry, cinema has a problem saying that people are fools. Okay, people are not fools. They can understand what cinema is. Okay, they have enough exposure. Don't need Netflix or anything like that. That's a class of people who watches it. But if you go to a village, you can screen film. You can engage in a conversation. They understand your film. The question is that there is no distribution system to reach it to them. So that is the biggest challenge of Indian documentary filmmaking in that manner. And there is no, like, for example, in Europe or US kind of thing, like, it comes on television or anything like that. There is no local kind of a, distribution system which exists for all of us. So the question is that you take it, walk it, talk to them, show it to them. So that is one of the major parts of it. Yeah, that is one of the major parts of the work, right? Okay. So there is a question from Sunanda, who's in the audience, and she says, "Thank you for making this film, Sunil and Deepu. I just wondered, how was it for you, Sunil, while you were filming Najib's mother, especially during the emotional moments? Did you ever feel you were intruding into her private space?" Sunil, आप म्यूट पे हैं. I will also answer. हाँ, intruding यानी अतिक्रमण. Enter.
हाँ, मतलब कि ये तो it's a universal question. It's always no that when you walk in with a camera and in people's personal spaces, तो फिर उनको झिझक होती है क्या, वो पावरलेस फील करते हैं बोलने के लिए अगर झिझक होती है, that kind of intrusion. इसमें दो राय नहीं, मतलब कोई अगर बिना पूछे कैमरे के साथ कोई हमारी लाइफ में घुसता है तो वाकई मुश्किल तो होती है और उसको भी होती होगी, और लेकिन अगर कॉज बड़ा हो तो ये सारी चीजें जो हैं थोड़ी देर के लिए ये हट जाती है। तो अम्मी के साथ भी यही था। शुरुआती दौर में मैं इंटरव्यू मम्मी का नहीं ले पाया था, ऑलमोस्ट कहा जाए 1.5 साल तक अम्मी का इंटरव्यू बहुत ठीक ठाक बड़ा इंटरव्यू बाइट्स मिल रही थी, ले रहा था प्रोटेस्ट में इन सब जगहों पर, लेकिन इंटरव्यू नहीं ले पाया था। इसके दो कारण थे। एक तो ये था कि मैं भी हेजिटेट कर रहा था लगातार कि यार उनके एक स्पेस में कैसे एंट्री करें। एक दूसरा ये भी था कि अम्मी के आसपास इतने इस तरीके से अजीब तरीके से लोग घूम रहे थे और जो बहुत अलग अलग तरीके से पोर्ट्रेट कर रहे थे, तो हम दोनों का अम्मी का विश्वास ही बहुत नहीं बन पा रहा था कि पता नहीं ये कौन है और क्या शूट करेगा, इन दो कारणों से। लेकिन ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद एक बार जो है हम लोगों ने बातचीत की और कि नहीं हम लंबा शूट करेंगे और इस पे चाह रहे हैं फिल्म को लेकर के फिल्म बनाना। और फिर जो है हम और पैडिसन पिक्चर्स के बाकी साथी लोग सब लोग यहाँ पर बदायूं गए। वहां पर कई बार ऐसा लगता था कि खासतौर पे 2 बार हुआ कि जब अम्मी रो रही थी और जहां पर कि कैमरा लगा कि बंद कर दिया हमने, और कई जगहों पर हमने नहीं बंद किया वाकई, दोनों जगहों। और ये जो फीलिंग है ये हमेशा बनी रही। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप अंत में फिल्म एडिट करते हैं और जब आप जो है फिल्म को आप जो है लेके आते हैं पर्दे पर जिस कॉज के लिए, तो मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है कि दरअसल किसके लिए आप कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरह का फुटेज। तो एज अ सेल्फ नो डाउट ये हमेशा ये डाउट रहता है ये। लेकिन अगर ये तय होता है कि दरअसल आप क्या करने जा रहे हैं, ये इसको लेके बहुत क्लियरिटी है, तो मुझे लगता है ये बहुत फिर ये डाउट बहुत नहीं रहता है। और इस पे अगर खास तौर पे अम्मी की सहमति है जिसको हम शूट कर रहे हैं उस स्पेस में, और उस व्यक्ति की या उस महिला की सहमति है, तो मुझे मतलब बहुत दिक्कत नहीं है। Deepu, you wanted to come in? Yeah, definitely. Can you hear me? Yeah. Okay. So you are speaking about the situations in which, yes, as far as Sunanda, asked, yes, it's in a way constructed. Okay, the way actually she goes through the photographs, we know that there is a breakdown which is actually going to happen. Okay. But at the same time, at that point in time when we were shooting, we were quite close to Ammi. By then. And we could hold her. Okay, we could hold her. And if you look at that scenes, the next scene is me and Sunil is holding Ammi very closely. Okay. So we had to reach into that point to actually have the conversation with her like that. Okay. And then actually she cried. The next sequences she's walking into his room and showing us. We never asked that actually. She wanted to show us. Okay. So the question is about what Sunanda asked. It's not about suddenly a situation got created. Yes, there are certain situations which we create as documentary filmmakers in terms of creating situations. But we knew that it will happen. Then actually after 1 hour, 1.5 hours, I still remember like me and Sunil sitting on left and right to her and just holding her. Okay, on that day. And then actually in the evening, she actually took herself into that room of Najib and what she can. Okay, so it's about like, how you create documentary filmmaking is not about just parachuting, and it's about like constructing relationship. And what is she to us today? She's like Ammi, like every week, like every 2 weeks I'll get a call asking, what is my situation and Corona and other things. So you're constructing relationships here. So, you are telling a story of somebody who is dear to you. And that's also quite important. And that's how I think that is the only way to be ethical. Okay.
And that is actually for me and Sunil. Actually, something happens in Sunil's family. She was very worried in the last few months. Something which happened. Okay, and she was calling me also. Getting the update. So it's a relationship and it's not exploitation. So how do we actually get out from exploitation in constructing sequences of cinema, okay, to actually telling a story of my own family? This is actually quite important, and only you can be ethical. So Ammi is for us Ammi. Your Ammi. And that's why we put that name also for the film. Okay, it's Ammi. It's Ammi. अगर हम मतलब उस घर के सारे शॉट्स को देखें तो सिर्फ वहां पर अम्मी का याद करके रोना ही नहीं, जब वो फोटो दिखा रही हो तो जाहिर सी बात है वो एक हिस्सा है। वो खाना बना रही है, जब उसको याद कर रही है उसमें एक खास तरह की आंखों में चमक भी है उसको याद करते हुए, बहुत नहीं, वो भी एक हिस्सा है। तो हम जिंदगी के घर के सारे पहलुओं को आप लेंगे ना, एक हिस्से को तो नहीं लेंगे। जब वो बुक्स दिखा रही हैं, जब उसकी टाई दिखा रही है तो वो इमोशनली वो हो रही हैं। वो दूसरे हिस्से में ही है, जब दूसरे हिस्से में याद करके बता रही हैं तब वहां दूसरे तरह का इमोशन है। एक हाउस, पूरे घर में एक महिला का बहुत तरह से नजीब को जीने का एक्सपीरियंस है, होलिस्टिक आपने रिप्रेजेंट किया है जी। हाँ, तो आई थिंक सुनंदा's क्वेश्चन वाज मोर के उन मौकों पे फिर आपके लिए क्या था। सो आई थिंक थैंक यू फॉर सॉर्ट ऑफ एम्फसाइजिंग हाउ प्रोसेस is very important in documentary filmmaking. It's not only what we see finally, but the process that leads to that. So I think we have overshot by a bit, by a little bit. So we will have to close it now. But thank you so very much, both of you, for this like very enriching conversation. मतलब मेरे लिए खुद के लिए I really liked the film, but to be able to get the chance to talk to you all about it and listen to what led to the film and that context. Thank you so much for that, and for emphasizing this, that actually film is also it's life, and it is about the life that we lead. And so you have really, in a sense, just turned the gaze to the life that you lead, and so to your own Ammi. Thank you so very much for that. And thank you, Bangalore. There's one more question, if you can take it, Samina. I don't know if quickly, maybe Jacob's. All right, there is a question. It's a comment, I think. It says, I was reminded of Amma Aryan. I'm not sure who that is. I'm sorry. मुझे भी नहीं पता. Okay, that's okay then. We'll just. Where Amma you reminded of, it is something great because we spoke about an Amma and an Ammi. All right then. So thank you all very, very much, and thank you Bangalore International Center and Vikalp for doing this, and may there be more conversations. Okay, thank you so much कि आपने